आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेटर टेट प्री प्राइमरी टू प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है और सीरीज ए है। तो चलिए बिना देरी किए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 31st क्वेश्चन है, हॉस्पिटल बेस्ड इंटरवेंशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। अस्पताल आधारित हस्तक्षेप उपयुक्त है। इसका आंसर रहेगा आपका सीवियर मेडिकल नीड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली इंटरवेंशन टू स्कूल रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके लिए चाहिए नो प्लानिंग नहीं आएगा। क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन फैमिली, अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड स्कूल, ये बिल्कुल बी क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेगा। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आर टेम्पररी इलनेस, नो लाइफ लॉन्ग कंडीशनिंग अफेक्टिंग फिजिकल कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, यस। Neurodevelopmental disorder include cerebral palsy, yes. Autism, ADHD, all of the above. Developmental delay means complete inability to develop, slow achievement of developmental milestone, yes. B will be the right answer. Early sign of developmental disability include delay speech, yes. Difficulty in social interaction, yes. Motor skill delay, yes. So all of the above answer आएगा। Risk factor for developmental disability include risk factor premature birth, yes. Genetic mutation, yes. Exposure to toxin during the pregnancy and all of the above आएगा इसका आंसर। ठीक है। Developmental disorder refer for early intervention should be done only after school test start, no, as soon as delay are suspected, yes. B will be the right answer. And children with developmental disability can access education through inclusive education, special school, home based education, all of the above आएगा। वैसे मोस्ट अगर ये क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली लिखा होता या रिसेंट ट्रेंड की बात करता होगा तो डेफिनेटली इस बात है इंक्लूसिव एजुकेशन। बट अगर हम RT एक्ट, अगर RPWD एक्ट का 31 सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ ऑलरेडी कि दे कैन बी सेलेक्ट देयर एजुकेशन सेटिंग बेस्ड ऑन देयर चॉइस एंड नीड, है ना। इंक्लूसिव नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर प्रमोट isolation of children with disability, no. Equal participation of all students, yes. Learning characteristics of student with developmental disability refer to physical characteristics, the way in which student best understand and process information, yes. B will be the right answer. Student with developmental disability may exhibit slow learn processing speed, difficulty in abstract thinking, yes. Need for repeat instruction, yes. तो सभी आएगा इसमें आंसर। और विजुअल लर्नर प्रेफर टू लर्न थ्रू, जो विजुअल लर्नर होते हैं एग्जाम्पल जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट और जो डेफ है वो विजुअल लर्नर है। वॉचिंग डायग्राम, चार्ट एंड वीडियो, यस, बी इज ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक लर्नर लर्न बेस्ट थ्रू, डेफिनेटली सी बात है हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड मूवमेंट। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। Identifying a student learning style help in ignoring their need, no. Planning effective teaching strategy, yes. Limiting learning option, no. Reducing classroom activity, no. According to Howard Gardner, intelligence include, ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करता है तो लॉजिकल की पहला ऑप्शन नहीं आएगा, ओनली म्यूजिकल, नो. थर्ड वेरियस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, यस. And evaluating student based on their learning style means using the same test for all, no. Using diverse assessment method like oral test and project practical वगैरह। 47 का बी राइट ऑप्शन। 48 है, identifying learning characteristics in children with developmental disability may be difficult because communication issue, multiple disability, variation in developmental stage, all of the above, डी ऑप्शन सही है। The cause of autism spectrum disorder is only poor parenting, no. Genetic and environmental, yes. इसमें सारे आपके कॉज आ जाते हैं। द ग्लोबल प्रिविलेंस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर 1/100, 500, 1/100 आएगा। अगर जनरली 2021 की रिपोर्ट देखेंगे हम WHO की, उसमें 127 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म होने की उसमें प्रोबेबिलिटी बताई है। ठीक है।
नेक्स्ट इज द टर्म ऑटिज्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ये लियो कार्नर। ये प्रीवियस जो पहले आपका स्पेशल टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। कल्चरल बिलीफ अबाउट ऑटिज्म आर द सेम वर्ल्ड वाइड, नो, वेरी ग्रेटली अक्रॉस कल्चर, यस। कल्चर में जो बिलीफ है अलग अलग है डिसेबिलिटी के प्रति, चाहे ऑटिज्म हो कोई भी डिसेबिलिटी, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, ये सब में। या फिर हम कह सकते हैं धर्म, सॉरी ये तो रीजन की बात होगी। कल्चरल जितने भी हमारे हैं डिफरेंट, उसमें भी जो है वेरी करता है, धर्म रीजनल में भी, एंड जोग्राफिकल भी वेरिएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथ अबाउट ऑटिज्म? मिथ क्या है? ऑटिज्म इज कॉज बाय वैक्सीन, यस, ये तो मिथ है। ऑटिज्म अफेक्ट कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन, नहीं। अर्ली इंटरेक्शन हेल्प इन इंटरवेंशन हेल्प इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, नहीं, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। एंड रिसेंट ट्रेंड इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फोकस ऑन अर्ली स्क्रीनिंग डायग्नोसिस, यस। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यस। न्यूरो डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस, यस। सो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही है। ऑटिज्म इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम बिकॉज इट ओनली अफेक्ट चिल्ड्रन, सिम्टम एंड सीवियरिटी वेरी वाइडली, यस। स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है इट्स ग्रुप ऑफ टू मैनी थिंग्स, ठीक है, कि जो सीवियरिटी और सिम्टम का वाइडली एक वैरायटी है। एंड मैनी चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी चिल्ड्रन विद ASD शो ओवर सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, यस। नो सेंसरी इशू, नो प्रेफरेंस फॉर लाउड नॉइसेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, तो पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी प्राइमरली अफेक्ट, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी इफेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड डेरिवेटिव बिहेवियर। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी में ही, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर कितना मुझे याद नहीं है, बट सो ये देखिए ये चीज़ हमें अगर हम एजुकेटर है तो जहाँ भी रिफ्लेक्शन हमें इस चीज़ पर ध्यान भी देना चाहिए। बिकॉज ये रिपीटेशन कब होता है? जब हमने ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करते हैं कि हमें कौन क्वेश्चन कितने कितने नंबर से कौन कौन से कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर से डालने हैं। तो जब उसमें लैकिंग होती है तो तभी हमारा ये रिपीटेशन का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एंड 58 and student with intellectual disability are classified based on level of level of intellectual functioning, yes, ठीक है। और माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टिपिकली, नेक्स्ट क्वेश्चन, corresponds टू एन IQ रेंज। देखिए ये भी IQ रेंज का एक क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है, बट ये बस डिफरेंट वे में वही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो माइल्ड का IQ की बात करी हुई है तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन 60 है, वन स्ट्रेंथ ऑफन ऑब्जर्व इन लर्नर विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्ट्रेंथ क्या है? ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आया था जिसका आंसर राइट किया था इन्होंने, गुड इमिटेशन मेमोरी फॉर प्रैक्टिस टास्क। ये क्वेश्चन इन्होंने जो है सही किया था, मतलब आंसर ऑप्शन सही किया था बी। तो चलिए अभी ये जो 30 क्वेश्चन है या इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगेन कह रहा हूँ कि ये जो आंसर है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ओपिनियन बेस्ड और मेरी नॉलेज बेस्ड है। इट कैन बी चेंज एंड कि क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव क्या डाला गया है, क्या किस आधार को ध्यान में रख कर के प्रश्न डाला गया है, तो वही आंसर सूटेबल रहेगा। एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।